پیارے بچوں السلام علیکم۔ کل ہم نے ارتھ کوئک کے بارے میں پڑھا ہے، اس کے ایفیکٹس، میٹیگیشن میجرز، یا ہم ارتھ کوئک کے دوران کیا کریں گے۔ آج ہم پڑھیں گے اگر کسی جگہ پر ارتھ کوئک آیا ہے تو ہمیں اس کے بعد کیا کرنا چاہیے، اور ساتھ ہی ہم لینڈ سلائڈس پڑھیں گے۔ اگر کسی جگہ اب ارتھ کوئک آیا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ جب ارتھ کوئک رک جائے گا تو ہمیں سب سے پہلے چیک کرنا چاہیے کہیں کوئی انجر تو نہیں ہوا ہے۔ اس کے بعد ہمیں یہ کوشش نہیں کرنی چاہیے کہ کوئی کسی ملبے کے نیچے آیا ہے یا کسی، ہمیں اس کو موو جو سیریسلی انجرڈ پرسنس ہوتے ہیں ان کو ہمیں اس طریقے سے اٹھانا نہیں چاہیے کہ کہیں ان کو اور چوٹ تو نہیں لگ جائے اور خطرے میں وہ نہیں چلے جائیں گے، بلکہ کاشسلی ہمیں اس کو وہاں اس ملبے سے نکالنا ہے، نہ کہ یہ کیا ایسے طریقے سے اٹھائے کہ اس کو اور کوئی بڑی انجری لگ جائے۔ اور ہمیں چیک کرنا ہے کہ کہیں آگ تو نہیں لگی ہے اور جہاں بھی ہم جائیں گے اس دوران تو ہمیں اس ملبے کے نزدیک اگر ہمیں جانا ہے تو ہمیں ضروری جوتے پہن کے جانا، نہ کہ ننگے پاؤں، کیونکہ کہیں شیشے ٹوٹے ہوں گے، کہیں کیل وغیرہ یا اور کوئی چیز جس سے ہمیں نقصان پہنچے، اس لیے ہمیں جوتے پہن کے وہاں جانا چاہیے۔ اور ہمیں دوسرا کیا ہے، ہمیں وہاں کی جو لائنز ہے، یوٹیلیٹی لائنز ہے، اپلائنسز ہیں، ان کو ہمیں پہلے چیک کرنا ہے کہ یا ہمیں ماچس نہیں جلانا ہے یا لائٹر نہیں جلانا ہے، جب تک نہ ہمیں یہ یقین ہو جائے کہ یہاں سب کچھ ٹھیک ہے، گیس وغیرہ یا گیس لیکیج نہیں ہے۔ اگر ہم ماچس جلائیں گے تو وہاں آگ لگ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں جو سیویج لائنز ہیں ان کو دیکھنا کہ وہ انٹیکٹ ہے کہ نہیں۔ ہمیں اس سے پہلے ٹوائلٹ کو فلش نہیں کرنا یا واش روم استعمال نہیں کرنا چاہیے، پہلے ہمیں دیکھنا ہے کہ لائنز ٹھیک ہے کہ نہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی ہمیں کم ہی واٹر، اگر ہمیں ٹوائلٹ کا استعمال کرنا ہے، واش روم کا استعمال کرنا ہے، ہمیں کم ہی واٹر استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ اس وقت یہ پانی ضرورت ہو سکتی ہے فائر فائٹنگ کے لیے، کہ اگر کہیں آگ لگی ہوگی، کیونکہ اس ارتھ کوئک سے کہیں آگ لگ سکتی ہے، تو اس وقت ہمیں پانی کا کم ہی استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ اس وقت سب کچھ ڈسٹرب ہوتا ہے، بجلی کی لائنز بھی یہ واٹر لائنز بھی، سارا کچھ، اس لیے ہمیں احتیاط کے ساتھ پانی استعمال کرنا چاہیے تاکہ اور لوگوں کو یا فائر بجھانے کے لیے بھی یہ پانی کام آ سکتا ہے۔ اور نہ ہمیں کوئی ایسی چیز کھانی چاہیے، پینی چاہیے جو ڈھکن کے بغیر ہو، کہ اگر کوئی کینٹین ڈھکن کے بغیر ہو تو ہمیں اس میں سے ارتھ کوئک کے بعد کوئی چیز نہیں کھانی چاہیے، کیونکہ اسپیشلی ان جہاں سے شیشے ٹوٹے ہوں گے، کہیں اس میں کچھ شیشہ وغیرہ چلا گیا ہوگا تو وہ ہمارے لیے، اگر ہم پھر اس کو کھائیں گے، وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے۔ اسی طرح ہمیں جو لائٹس ہیں ان کو آف آن نہیں کرنا چاہیے کہ سپارکنگ کی وجہ سے، یا اگر ہم سپارکنگ وجہ سے وہاں آگ بھی اگر کوئی پائپ لیکیج ہو، گیس لیکیج ہو تو وہاں آگ بھی لگ سکتی ہے۔ اور ہمیں ریومرز، افواہیں نہیں پھیلانی چاہیے، کیونکہ ان سے یہ زیادہ ہارمفل ہے، یہ زیادہ ڈیزاسٹرز ان سے زیادہ نقصان ہو جاتا ہے۔ اگر ہم افواہیں یہ ہوا وہ ہوا تو لوگ اس سے زیادہ اس میں ٹراما میں آ جاتے ہیں۔ اور ہمیں اگر کوئی خطرہ لگے تو ہمیں کال کرنا ہے، ہمیں پتہ ہے 101 کو یا 100 کو، اگر ہمیں کوئی لائف تھریٹنگ ایمرجنسی ہو تو۔ اس کے علاوہ جو بھی ریکویسٹ یا فرام سول ڈیفنس سے یا فائر سروس سے یا پولیس سے یا ہوم گارڈ سے آئی تو ہمیں ان کی طرف ریسپونڈ دینا چاہیے۔ اسی کے ساتھ ہمیں جو ڈیمیجڈ جگہ ہے جہاں پر ارتھ کوئک آیا ہے، اس جگہ ہمیں کراؤڈ نہیں بنانی چاہیے، جب تک نہ ہمیں ریکویسٹ کرے مدد کے لیے کہ کوآپریٹ کرو، یا کوئی پبلک سیفٹی آفیشل ہمیں یہ ریکویسٹ کرے آ جا ہماری مدد کے، تب تک ہمیں ان کراؤڈڈ پلیس پر کراؤڈ نہیں بنانی چاہیے ان جگہوں پر جہاں یہ ڈیمیج ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم پڑھیں گے لینڈ سلائڈس۔ لینڈ سلائڈس کیا ہے؟ یہ
जियोलॉजिकल फिनोमेना है जिसमें एक बड़ा सा सॉइल का टुकड़ा या रॉक का टुकड़ा ऊपर से स्लोप की तरफ आ जाता है, नीचे बड़ा सा मलबा मलबा नीचे की तरफ आ जाता है। ये लैंडस्लाइड्स हमेशा या हम ये बोलेंगे बहुत एक पहाड़ जैसा टुकड़ा, बड़ा सा या रॉक या चट्टान या कोई चीज़ ऊपर से खिसक के नीचे की तरफ आ जाती है। तो ये लैंडस्लाइड्स या तो ज़्यादा बारिशें होगी उससे होता है, या स्नोफॉल ज़्यादा होगी उससे हो जाता है, या अर्थक्वेक की वजह से, कोई किसकी वजह से भी ये लैंडस्लाइड्स होते हैं। ये हमेशा कहाँ ये ऑब्जर्व किए गए ज़्यादा हो जाते हैं, तकरीबन हिंदुस्तान के सारे कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक जो हिमालयन रेंज है, इसमें तकरीबन सारे इलाके में लैंडस्लाइड्स आते हैं। ये जो इसके अलावा जो ईस्टर्न घाट है या वेस्टर्न घाट है या नीलगिरीज है या विंध्याचल है या नॉर्दर्न माउंटेन्स या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो भी हैं, जो भी इस हिमालयन रेंज में आते हैं, इनमें ये लैंडस्लाइड्स होते हैं। हमारे पास अगर कश्मीर की बात करेंगे, अगर हम जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर कभी सफ़र किया होगा हमने, या किया है या करते हैं, तो हम देखते हैं कि हर रोज़ हर दूसरे तीसरे दिन रोड ब्लॉक हो जाता है। क्योंकि अगर थोड़ी सी भी बारिश होती है तो वहाँ से माउंटेन से बड़े बड़े लैंड स्लाइड्स आते हैं और इस रोड को ब्लॉक करते हैं, जिसकी वजह से हमें व्हीकल्स को स्टॉप करना पड़ता है, गाड़ियों को स्टॉप करना पड़ता है, और जब तक न रोड क्लियर हो जाता है। ये क्यों से होता है, ये लैंड स्लाइड्स क्यों ज़्यादा हो जाते हैं? जब हम किसी बड़े पहाड़ को काटेंगे रोड्स बनाने के लिए, या कोई बिल्डिंग बनाते हैं, फिर इसकी खुदाई करते हैं, ज़्यादा हम इसकी ये निकालते हैं मिट्टी वगैरह, एक पत्थर, तो उन इलाकों में ज़्यादा लैंड स्लाइड्स होने का चांसेस होता है, खतरा होता है। ये लैंड स्लाइड्स अगर बारिश होती है उससे ज़्यादातर बारिश होते हैं या बर्फ़ से होते हैं या अर्थक्वेक से होते हैं। ज़्यादातर इन लैंड स्लाइड्स के कॉन्सिक्वेंसेस, द मेजर कॉन्सिक्वेंस ऑफ लैंड स्लाइड्स इंक्लूड, क्या क्या हो जाता है इसमें? इससे होता है कि एक तो ब्लॉक हो जाती है, स्ट्रीम्स जो होते हैं वो ब्लॉक हो जाती है, और बड़ी सी चट्टान, बड़ा सा पत्थर, ये ज़मीन का टुकड़ा, मिट्टी का तोदा आ गए और किसी दरिया में गिरा या स्ट्रीम के सामने आ गया, तो वहाँ क्या हो जाता है, वो स्ट्रीम का फ्लोइंग, जो वाटर फ्लोइंग होता है वो फ्लो नहीं हो जाता है, और वहाँ सैलाब आ जाता है। ज़्यादा जब वो बंद हो गया एक साइड से, तो वहाँ उधर ये ब्लॉकेज हो जाती है उसकी, और उससे सैलाब भी आ सकता है। और ओवर फ्लोइंग होती है, लेक्स, अगर लेक किसी लेक में गिर जाएगा तो ओवर फ्लोइंग हो जाएगी उसकी। इसी तरह जो वेहिकुलर मूवमेंट होती है, अगर सड़क पर आ जाएगी तो गाड़ियाँ इधर उधर नहीं जा सकती, उस मूवमेंट पर भी ये आता है, रोक लग जाती है, बंद हो जाती है, वेहिकुलर मूवमेंट बंद हो जाती है। इसी तरह अगर किसी उस इलाके में आ गया जहाँ बस्ती होगी, तो वहाँ प्रॉपर्टी और लोग ज़िंदगियों का नुकसान हो जाएगा, खतरा है। इसी तरह एक्सीडेंट्स का खतरा भी हो जाता है, कभी बड़ा सा मलबा आता है और जो स्लोप्स में मकान हो जाते हैं उनको भी अपने साथ बहा के ले जाता है, या जानवर चरते होंगे तो उनको भी अपने साथ ले जाता है। इसी तरह जो वेजिटेशन होती है, पौधे दरख्त वगैरह, इनको ये लैंड स्लाइड्स की वजह से एक बड़ा सा टुकड़ा जब इसमें निकलता है, अलग हो जाता है पहाड़ से, तो वो सब कुछ अपने साथ बहा के ले जाता है। इसी तरह जो रोड्स होते हैं, बिल्डिंग्स होते हैं, शॉप्स, जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, वो भी इससे तबाह हो जाता है। अब इस मिटिगेशन मेजर्स क्या हैं, अब इसको कैसे रोक सकते हैं या कम कर सकते हैं? सबसे पहला जो है वो ड्रेनेज मैनेजमेंट है। लैंड स्लाइड जो होते हैं ये उन इलाकों में ज़्यादा हो जाते हैं जहाँ हैवी रेन, ज़्यादा बारिशें होती है। इसको कम करने के लिए हमें
जो नेचुरल ड्रेन्स है, वहाँ की जो नहरें होती है, छोटे छोटे स्ट्रीम्स होते हैं, इनको हम मजबूत बनाने, इनके वॉल्स को मजबूत बनाना चाहिए, और उनकी साफ़ सफाई होनी चाहिए ताकि पानी उनमें से स्मूथली फ्लो हो जाएगा। न कि न कि पानी रुक जाएगा, इसकी वजह से भी लैंडस्लाइड्स हो जाते हैं। इसको हम ऐसे तरीक़ों से हम इस लैंडस्लाइड्स को कम मिनिमाइज कर सकते हैं। अगर हम स्ट्रीम्स को साफ़ करेंगे, उनकी खुदाई करेंगे अच्छे से, हर साल इनकी सफाई करेंगे, ड्रेन्स और उनकी मजबूत बनाएंगे इनको, तो आसान पानी उनमें से आसानी से फ्लो हो जाएगा। और जो जहाँ जहाँ ज़्यादा ये प्रोन एरियाज़ हैं इसके लैंडस्लाइड्स के, वहाँ हमें इनकी कंक्रीट दीवार बनानी चाहिए, लगानी चाहिए, दीवारें लगानी चाहिए, ताकि कम से कम नुकसान हो जाएगा, कम से कम ये लैंडस्लाइड्स होंगे। इसी तरह जो ज़्यादा प्रोन एरियाज़ है इसके, नंगे पहाड़, उन पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन करनी चाहिए। जितनी ज़्यादा प्लांटेशन होगी, लैंडस्लाइड्स कम हो जाए, मिट्टी का कटाव कम हो जाए, क्योंकि दरख्त की जड़ें मिट्टी को मजबूती से जकड़ के रखते हैं। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा से प्लांटेशन करनी चाहिए। हम उसके रूट्स जो हैं उसको, इस सॉइल को इरोजन करने से या कटाव होने से बचाते हैं, और पानी आसानी से ऊपर से ही आसानी से बहा जाता है, और लैंडस्लाइड्स का चांस कम होता है। ये दूसरा है मैपिंग। उस जगह हमें मैपिंग के ज़रिए देखना है कि कौन से इलाके में ज़्यादा लैंडस्लाइड्स की रिस्क है। इस डाटा की वजह से हम इन एरियाज़ को जब हम मैपिंग करेंगे तो उस इलाके को हम अवॉइड करेंगे सेटलमेंट के लिए, उस एरिया को सेटलमेंट के लिए हम अवॉइड कर सकते हैं। उस तरह से भी इसको लैंडस्लाइड्स के खतरे को मिनिमाइज़ कर सकता है। दूसरा, अवेयरनेस प्रोग्राम्स। हम लोगों में अवेयरनेस प्रोग्राम्स पैदा करेंगे कि किस तरह के इसके ये कैसे आते हैं, और हमें क्या क्या एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए, और हमें लैंडस्लाइड जो रिस्क जोन्स हैं इनको मतलब अलग करना चाहिए, या इनको रिस्क जोन है इनको अलग, हमें मतलब अलग करना चाहिए। कौन कौन सा इलाका उस ज़्यादा से ज़्यादा लैंडस्लाइड जोन में आता है, ताकि लोग खुद ही एहतियात करें उन इलाकों में सेटलमेंट्स के लिए, या ज़्यादा उधर जाने के लिए ड्यूरिंग रेन्स। इस तरह से हम इस लैंडस्लाइड्स का खतरा मिनिमाइज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं।